फॉर अस द मेन पर्पज इज कि अच्छी इंफॉर्मेशन जो अपनी सिटी की है, सो दैट शुड रीच टू मैक्सिमम ऑडियंस. वी शुड क्रिएट अ कम्युनिटी. Wonderful. I mean, the legacy which you are carrying and the brand building you are doing, being a guardian of your own brand, how do you ensure that in the world of clickbaits and the lower attention span, that the readers stay engaged with the print? I am the managing editor of Thane Vaibhav. It is the oldest Marathi daily of Thane. Currently, we are in our 51st year. Last year, we celebrated our golden jubilee. How do you ensure the gravitas of news? I mean, these days it's like a newspaper or a 60-second reel. पहले जब हमने ये शुरू किया तब मुझे लोगों ने बोला कि यार ये आप मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली करो या 6 months में एक बार करो, इतना कैसे कंटेंट आप गैदर करो टिल डेट. एंड शी वांट्स टू क्लाइम दैट पीक. शी इज हार्डली 10 years old, बट वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट फंड्स. अभी तक इतने इकट्ठा हुए, पर मे बी और न्यूज़ में हेल्प अस इन कलेक्टिंग सम फंड्स. यू वोंट बिलीव, हमने वो न्यूज़ प्रिंट करा, विद इन 7 days दे गॉट द एंटायर बजट. पहले जब हमने ये शुरू किया तब मुझे लोगों ने बोला कि यार ये आप मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली करो या 6 months में एक बार करो, इतना कैसे कंटेंट आप गैदर करोगे. In an era where digital trends vanish every 24 hours, how do you make sure the brand stays relevant for over 50 years? Today's guest is no less than a powerhouse of a narrative. He is the managing director of Thane Vaibhav, the oldest and the most influential newspaper, Marathi daily in the region. Please welcome a man who understands the pulse of 12 million readers and the true power of hyper-local storytelling, Nikhil Balal. Welcome, Nikhil. Thank you to so the much. Story Foundry podcast. So, Nikhil, a quick introduction from your side to our readers and users. Okay, first of all, thank you so much for having me here. It's a very different experience for me altogether because I'm always on that side, interviewing people, Right. doing podcast. So this is a very different experience. Perhaps my first podcast. I'm giving podcast this time. Oh. So thank you for this opportunity. So basically, to introduce myself, I'm the managing editor of Thane Vaibhav. It is the oldest Marathi daily of Thane. Currently, we are in our 51st year. Last year, we celebrated our golden jubilee. Excellent. And when we started way back in 1975, it was started by my grandfather, late Narendra Ballad. So he was working with Maharashtra Times earlier, Maharashtra Times. which is one of the leading Marathi daily of Maharashtra. Right. So that time he got an opportunity to see the local county papers, which were quite popular in Europe. Okay. So he thought, can we start something exclusively for Thane, something like this. So that is how this idea struck to him. Right. कि एक अपना खुद का पेपर चालू करते हैं which caters only exclusively to Thane city. Right. And eventually now it has become a district mouthpiece now. But eventually, like initially started with Thane city. तो तभी जब उनको ये आइडिया मन में आया तो this idea was very vague. And of course it was ridiculed. क्योंकि ये ऐसा कुछ चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि एट दैट टाइम स्टेट नेशनल पेपर्स ऐसे कॉन्सेप्ट था. Okay. ऐसे लोकल हाइपर लोकल पेपर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Right. तो इवन लाइक वेयर ही वाज वर्किंग एट टाइम्स ग्रुप, तो वेयर ही गेव हिज रेजिग्नेशन, दोस पीपल आल्सो डिडंट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन. Oh. Okay. दे सेड कि अरे ये पागलपंती है, आप थोड़ा ये पागलपंती कर लो और 3-4 महीने के बाद वापस हमें ज्वाइन कर लो. तो हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर देंगे, आप हमारे पेरोल पे आज भी हो. Okay. तो ही सेड नहीं, आई वांट टू ट्राई दिस एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बिकम सक्सेसफुल. Okay. एंड वो एक सेल्फ बिलीफ था, एक विजन था. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू टुडे दैट every paper, every leading paper, you name a paper, they have a Thane edition now. Excellent. So I think
मतलब एक विजन अगर अपना हो और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि ये हो सकता है, वी हैव टू बिलीव इन आवर ओन आइडिया, बिकॉज वो आइडिया अपना है. Yeah, true. जब तक हम अपने आइडिया पे बिलीव नहीं करेंगे तब तक दूसरा कोई कैसे बिलीव करेगा. That's true. And I think he believed that idea. Then again, my father followed his footsteps. I followed my father's footsteps. So I'm the third generation now. I'm the 3G, 3G. of Thane Vaibhav. Okay. And running this business. Now even my wife, my sister, they have also joined our business. So it's Very a family nice. business completely. And we are very happy that जो सबसे growing city है अभी फिलहाल इंडिया में, because सबसे ज़्यादा माइग्रेशन फिलहाल हो रहा है थाने में. Thane. क्योंकि अभी मुंबई में कैसा है, एक थोड़ा सैचुरेशन आ गया है. Yes. मुंबई इज नॉट दैट अफोर्डेबल. लोगों को काम मुंबई में करना है पर रहना कहाँ है, तो रहना फिर थाने में. तो इसलिए माइग्रेशन बहुत बड़े पैमाने में थाने में हो रहा है. Right. तो रीडर्स बढ़ रहे हैं, तो रीडर्स बढ़ रहे हैं तो पेपर भी बढ़ रहा है. तो पेपर का सिर्फ फॉर्म अलग अलग है. अभी Yes. पहले फिजिकल बहुत बढ़ रहा था, बट आफ्टर कोविड नाउ द फॉर्म इज चेंजिंग. सो वी आर ग्रोइंग डिजिटली. प्रिंट भी ग्रो कर रहे हैं, पर उसके पास मैं आऊंगा, वो हम कैसे बढ़ा रहे हैं. Exactly. Wonderful. I mean, the legacy which you are carrying and the brand building you are doing, being a guardian of your own brand, how do you ensure that in the world of clickbaits and the lower attention span, that the readers stay engaged with the print? नहीं, कैसा है ना कि people still like to know more about what is happening in their nearby areas. Right. नेबरिंग एरिया में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, नेशन में क्या चल रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में क्या चल रहा है, वो देने वाले सोर्सेस बहुत है. Exactly. पर ऑथेंटिक न्यूज़ अपने लोकल एरियाज में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में स्टिल पीपल आर वेरी इंक्विजिट टू नो. एंड दैट हैज बीन आवर कोर फिलोसफी, दैट हैज बीन आवर यूएसपी राइट फ्रॉम द बिगनिंग. इट इज आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड वी हैव स्टिक टू इट. मतलब कि इससे डाइवर्ट नहीं होना है. मतलब अगर बाकी लोग स्टेट, नेशन, ग्लोबल ज्यादा दे रहे हैं तो हम भी वो वैसा करते हैं, तो उसमें वो रैट रेस में नहीं जाना है. वी हैव टू स्टिक टू आवर कोर फिलोसफी कि हमें लोकली न्यूज देने. और अभी जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से माइग्रेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, Right. तो देर आर सो मच थिंग्स हैपनिंग विद इन योर सिटी. मतलब देर आर मल्टीपल सिटीज विद इन योर सिटीज नाउ, कि इतनी चीजें बढ़ रही है, इतने सोसाइटीज हो रहे हैं, इतने नए नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मॉल्स आ रहे हैं, बिजनेस हब्स आ रहे हैं. तो वी हैव सो मच टू कवर. Yes. So there is about like we have a lot of things to cover about education हो, finance हो, health हो, इतने नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, Right. एंड पीपल वांट टू नो कि हमारे नियर बाई एरियाज में क्या हो रहा है. Right. तो हम लोग ने वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया है कि ये हमें देना है और ये एक्यूरेट देना है, ऑथेंटिक देना है, जिससे लोगों को फायदा हो. मतलब द न्यूज विच दे कैन यूज. ये हमारी फिलोसफी रही है हमेशा फ्रॉम डे वन, एंड दैट हैज बीन कंटिन्यूड सो फार. Okay. So, you mean to say that the niche market which you have captured is your USP, Yeah, is your yeah. strength. Absolutely. So then, how do you ensure the gravitas of news? I mean, these days it's like a newspaper or a 60-second reel. So how do you ensure that your audience stays glued to Thane Vaibhav? So see, even I see reels. तो आजकल अभी क्या है, वो तो it has become a part and parcel of everybody's life. So we are also on digital platform. So we give the same dose of news digitally also. We also make our reels. We put it on Facebook, Instagram, put it on YouTube Shorts. तो ये सब भी चीजें हम कर ही रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि we have confined ourselves only to print. Right. See, for us the main purpose is कि अच्छी information जो अपनी सिटी की है, so that should reach to maximum audience. We should create a community. Yes. And connecting dots has been our core philosophy. तो अभी कैसा ना कि people like to acknowledge each other, people like to read about each other, people like to know the stories of each other. Yes. ये बाकी मीडियम्स को ही नहीं देते, और ये दे भी नहीं सकते क्योंकि they have the space constraint. Okay. उतना उनके पास वो bandwidth नहीं है. But we are meant only for that. Okay. तो हम लोग यही करते कि ऐसी न्यूज दे जिससे एक दूसरे का फायदा हो. मतलब इतने नेटवर्किंग ग्रुप्स क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब देयर आर सो मेनी नेटवर्किंग ग्रुप्स एंड एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ अ डिफरेंट नेटवर्किंग ग्रुप. Right. तो ये एक प्रकार का अभी नेटवर्किंग फोरम हो गया ठाणे वैभव, कि ठाणे वैभव में कभी किसी का इंटरव्यू आता है तो मे बी दे रिसीव सम फोन कॉल्स, दे हैव सम बिजनेस एक्सचेंज विद ईच अदर, या दे मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी समवेयर एल्स, दे डिस्कस अबाउट सम अदर इवेंट आइडियाज, इनिशिएटिव्स. सो इट हैज बिकम अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर थानेकर्स नाउ. सो ये हम बढ़ा रहे.
और इसके लिए फिर हम लोग अलग अलग ग्रुप्स को अप्रोच कर रहे हैं. वी हैव लाइक न्यूज़लेटर फॉर डॉक्टर्स, we have a newsletter for industrialists, we have a newsletter for schools, colleges, industrial parks, फाइनेंस के लिए अलग है. तो अलग अलग जो सेक्टर्स है जो थाने के और जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो कम्युनिटी के, तो उनके लिए एक अलग अलग न्यूज़लेटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं. एंड दे हैव बीन डूइंग फेनोमेनली वेल, क्योंकि एवरीवन लाइक्स टू कनेक्ट विद द लाइक माइंडेड पीपल ऑफ देयर ओन कम्युनिटी, कि उससे कुछ ना कुछ आइडियाज एक्सचेंज होते हैं एंड कुछ एक कॉन्क्रीट आगे मिलता है उनके लिए. सो ये हम अलग अलग जो इनोवेशंस कर रहे हैं जिसके वजह से क्या हुआ है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है अपना वो भी ग्रो हो रहा है, वो एम्पलीफाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. पीपल वांट टू कनेक्ट मोर विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस. That's true. In fact, newsletters, when you said that you are building newsletters and which is eventually leading to community building, so I would come to that also in the next format of questions. So newsletters, like do they become your subscribers, or is there particular, like let's say doctors are there, they are reading Thane Vaibhav and they subscribe to doctors wala newsletter, and then there are maybe real estate agents, so they read out to that particular, or do you make sure that they are getting all different kind of newsletters? How does the distribution works? So क्या है, हम लोग ने ना वो सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा ही नहीं है. अच्छा, ओके. हाँ, हम लोग ने ऐसा रखा है कि ये न्यूज़लेटर ना फ्री जाना चाहिए. ओके. तो वी गैदर द रेवेन्यू फ्रॉम द स्पॉन्सर्स, लाइक जिनको डॉक्टर्स तक पहुंचना है तो वी गेट दैट स्पॉन्सर हु स्पॉन्सर्स दैट न्यूज़लेटर एंड दैट न्यूज़लेटर गोज फ्री टू ऑल डॉक्टर्स. वेरी नाइस. सो फिर उससे क्या होता है, वो एक हिंड्रेंस चला जाता है. लाइक देयर इज, ऐसा नहीं है कि यार ये सब्सक्राइब करेगा तो ही उसको मिलेगा. सी we want maximum eyeballs as much as we can. तो उसके वजह से फिर वो पहला हम लोग ने वो जो क्लॉज है वो हटा दिया कि सब्सक्रिप्शन नहीं, क्योंकि कैसे कि आई हैव वर्कड विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो. आई वाज अ पार्ट ऑफ ABP माजा, ABP न्यूज़. आई हैव वर्कड देयर एज अ रिपोर्टर फॉर 2.5 years. तो उसका एक जो मुझे ना एक अच्छा लगता है ना वो चैनल का ऐसा है कि चैनल इज लाइक हमें ऑलमोस्ट फ्री मिलता है. मतलब जो हम चार्जेस देते हैं चैनल के लिए टू कंज्यूम दैट चैनल विच इज हार्डली नॉमिनल, तो ये कंटेंट का चार्जेस नहीं रखते. मतलब एक ठाणे वैभव है जिसका एक चार्ज है क्योंकि द प्रिंटिंग कॉस्ट इज क्वाइट हाई, तो वो तो रखना ही चाहिए. फिर भी वो जो कॉस्ट है पर कॉपी जो हम सेल करते हैं, दैट पर कॉपी कॉस्ट एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें बहुत डिफरेंस है. तो एक्चुअली मतलब इट इज द ओनली बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड परहैप्स कि विच इज सोल्ड इन लॉस एवरी डे. मतलब जो मैं कॉपी 4 रुपए में बेचता हूँ वो बनाने के लिए मुझे 7 रुपए लगते हैं. सो आई इनकर अ लॉस ऑफ 3 बिहाइंड एवरी कॉपी. सो पर ठीक है, अभी वो ठाणे वैभव कैसा डेली पेपर है, डेली लोगों को कैसा ना वो एक आदत है कि सब्सक्राइब करना, पढ़ना वगैरह. रोज का कैसा सुबह की चाय के साथ वो पेपर चाहिए हाथ में वगैरह, फिजिकल कॉपी एंड ऑल. तो वो एक फॉर्मेट तो चल रहा है. पर जब ये सब न्यूज़लेटर्स की बारी आई तो हमने सोचा कि इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं रखते, तो इट विल फ्री टू एवरीवन एंड इट रीचेस ओनली टू दोज पीपल. लाइक डॉक्टर्स का न्यूज़लेटर है ना, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं भेजता हूँ, मैं स्कूल्स को नहीं भेजता हूँ, क्योंकि फिर वो उतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है. तो वी सर्कुलेट देयर, वी इवन गैदर देयर न्यूज इवेंट्स एक्टिविटीज. तो वो लोग भी विलिंगली वो भेजते हैं, क्योंकि ना ऐसा फोरम ही नहीं है कि जहाँ पर वो अपने न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश करे. जैसे कई सारे डॉक्टर्स, अभी डॉक्टर्स का एग्जांपल लेता हूँ कि वो रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं या फिर वो कुछ नए उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है अपने हॉस्पिटल में, तो वो बताने का कुछ उनके पास है ही नहीं मीडियम. मतलब दे पुट इट ऑन देयर फेसबुक, इंस्टाग्राम, दैट इज डन. पर ऐसा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो सारे लोग पढ़ते हैं देखते हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं. तो फिर हम लोग ने सोचा कि ये हम इसको चालू करते हैं. एंड सेम लाइकवाइज विद स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक के पास इतना कुछ है ना बताने लायक. एवरीवन हैज ओशन ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन विच दे वांट टू शेयर. मतलब पहले जब हमने ये शुरू किया तब मुझे लोगों ने बोला कि यार ये आप मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली करो या 6 months में एक बार करो, इतना कैसे कंटेंट आप गैदर करोगे. अभी ऐसी बारी आई है कि आई फील आई शुड डू इट वीकली. That is the kind of content which we have. So content is amazing, lot of content. और ये content missing था. मतलब in the regular mainstream paper, I was not able to publish all this content because of space constraint. Yes. तो अभी ये ऐसा exclusive newsletters जिसमें ये सारा content आ रहा है, and that is helping the traditional media to grow. अभी ये वैसे तो न्यूज़पेपर ही फॉर्मेट है, वो न्यूज़लेटर्स जो है वो 4 पेजर न्यूज़पेपर जैसे ही दिखते हैं. थोड़ा सा पेपर क्वालिटी अलग है, लेआउट अट्रैक्टिव है, पर है तो पेपर ही. पर
जो पेपर का थोड़ा सा कम हुआ था आफ्टर कोविड, मतलब कोविड के बाद लोग पेपर पढ़ना बहुत कम हुआ था, अभी बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स पीपल हैव अगेन गॉट बैक टू रीडिंग. तो ऐसा है. Exactly. I mean, I also feel if I have, the newspaper, the general newspaper and the newsletter, so newsletter will be more attractive Yeah. to read because of yeah. the paper quality and, the colorful pictures. Yeah. So, उसका साइज भी हमने वैसे रखा है, फ्रेंडली रखा है, लेआउट एकदम क्रिस्प रखा है, अट्रैक्टिव रखा है, फोटो इमेज कंटेंट ज्यादा है, टेक्स्ट कंटेंट कम है, ताकि ना वो बहुत टेक्स्ट ये ना लगे. मतलब ऐसे कि शॉर्ट में, क्योंकि लोगों के पास उतना बैंडविड्थ नहीं है, पीपल हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू इन अ डे. तो हम लोग ने ऐसे रखा कि इट इज लाइक अ 5 मिनट रीड. 5 मिनट में आपको पूरा थाना के उनके सेक्टर में क्या चल रहा है वो उनको आइडिया आ जाएगा. एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग द स्पॉन्सर्स ऑल्सो टू कनेक्ट विद द राइट ऑडियंस. मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन. नहीं तो पहले ऐसा था कि like it is good to advertise in a generic media and a niche media. पर generic में क्या होता है, कई बार media wastage हो जाती है. मतलब you reach out to people, maybe they may not be your target customers. अब इसमें कैसा है ना कि उनको जिन तक पहुंचना है वहां पर ही वो advertise कर रहे हैं. तो वो एक बहुत concentrated efforts उनको मिल रहा है. सो इनफैक्ट जितना भी हम ये न्यूज़लेटर और इसकी बात कर रहे हैं प्रिंट की, सो रीडिंग जैसे आपने बोला दैट रीडिंग बिकम्स वेरी दिस थिंग. सो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें, आई मीन आई वाज रीडिंग द स्टैटिस्टिक्स, even a young child spend more time on screen, and reading time is actually reduced to just 25 to 30 minutes, apart from the general studies and whatever a person is doing. So this is where I feel that reading has actually been fading away. So I think जो newsletter वाला जो concept आपने बताया है, I think this is something which actually attracts, and it actually leads viewers to read. Because एक वो क्या कहते हैं कि I was reading that book, in fact in my last podcast I did it with Jishan. So उसमें हम Atomic Habits एक book है, so उसमें जेम्स क्लियर की बुक है. So उसमें हम बात कर रहे थे that कोई भी अगर हैबिट है तो वो जितनी अट्रैक्टिव होगी ना तो उतना वो हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे. बिल्कुल. तो जैसे आपका न्यूज़ लेटर है वो अट्रैक्टिव है, सो इफ आई नो दैट एवरी वीक इट इज़ गोइंग टू कम, आई वुड वेट फॉर दैट, राइट, दैट येस अभी क्या लेटेस्ट आने वाला है. सो आई थिंक अगर ऐसे ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा ऐसे दे मोटिवेट देम दैट टू इनकलकेट द रीडिंग हैबिट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज रीडिंग हैबिट इज एक्चुअली getting very less. So this is something which is a very good move which you are doing, and I would also encourage that schools maybe unko aise they should do more of a reading contest, and they should bring out children ki newspaper read karke news नहीं, मैं उसके ऊपर आने वाला था कि हम लोग ने क्या किया कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं. अभी मेरे घर में ही 2 बच्चे, तो आई नो ना कि ये लोग कितना पढ़ते हैं, कितना क्या इंटरेस्टिंग उनको लगता है, क्या नहीं लगता है वगैरह वगैरह. तो फिर हम लोग ने ऐसा किया कि लेट्स स्टार्ट अ न्यूज़लेटर ओनली फॉर स्कूल्स, जिसमें कंटेंट हम नहीं देंगे, हम बच्चों को ही रिपोर्टर बनाएंगे. हाँ, तो हर स्कूल का रिपोर्टर होगा बंदा, तो ही विल बी द एडिटर, ही विल बी द रिपोर्टर. तो उसको ना एक सेंस ऑफ ओनरशिप लगेगा कि ये मेरा पेपर है. यस. सो बेसिकली हम लोग ने उनको बोला कि आपको हम लोग पढ़ाएंगे कि कैसे न्यूज़ गैदर करते. तो जो जर्नलिज्म के बेसिक रूल है, ऑल WH क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड, लाइक ये इवेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और किसने किया. सो ऑल WH क्वेश्चंस इफ दे आर आंसर्ड, योर न्यूज़ इज रेडी. एंड एकदम शॉर्ट में लिखो, आप ज्यादा लिखो ही ना. और अभी क्या ग्रामरली वगैरह ऐप है, मतलब कई सारे ऐप्स है वेर यू कैन करेक्ट योर लैंग्वेज एंड ऑल. और अगर फिर भी अगर वैसा थोड़ा रॉ आता है तो वी क्यूरेट. बट इससे क्या हुआ कि हर स्कूल का बच्चा ना नाउ ही इज टेकिंग इंटरेस्ट टू राइट, बिकॉज क्या होता है जो न्यूज आते हैं वो उनके न्यूज होते हैं. दे आर राइटिंग अबाउट देयर फ्रेंड्स, दे आर राइटिंग अबाउट देयर टीचर्स, स्कूल्स, दे आर राइटिंग अबाउट देमसेल्व्स, और वो न्यूज उनके नाम से प्रिंट होती है, उनके फोटोग्राफ्स आते हैं. सो नाउ दे फील मोटिवेटेड कि अरे ये मेरा पेपर है, या इसमें मेरा कंटेंट आ रहा है, तो फिर वो पढ़ते. सो ओनरशिप. तो अभी ये करने पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि आज अगर ये हमारे रीडर्स बनते हैं तो कल रीडर्स रिटेन रहेंगे. सो दैट इज व्हाई वी वांट टू कैच देम यंग, जो हम बोलते हैं ना. तो वी वांट टू क्रिएट अ हैबिट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. नाउ माय चिल्ड्रन स्टार्टेड रीडिंग बिकॉज ओकेजनली नाउ ही फील्स कि मेरा भी कभी तो नाम आने वाला है पेपर में. एंड टू
have your name in the paper na, Yes. still मतलब it carries a lot of weight. Yes. So and people have a lot of attraction to it. See, now Instagram, Facebook, all these things have grown exponentially. It is very easy to put your photo to get a lot of eyeballs, get likes, shares, etc., etc. Yeah. But that is what you are doing, Hmm. and this is what we are doing for them. तो ये एक फर्क है कि people like कि अरे they have recognized us, they have taken cognizance of us. Yes. So ये ना एक उनके लिए बहुत कि मेरा छोटा सा नाम भी पेपर में कहीं आता है या फोटो आता है तो they keep it as a memory also, they preserve it. Exactly. मतलब मैं जब हमारी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ लास्ट ईयर 50th हमारी एनिवर्सरी थी तो वी ऑल्सो केम अप विद अ कॉफी टेबल बुक विच वॉज अनवील्ड बाय आवर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे. सो ही अनवील्ड दैट बुक एंड दैट डे वी मेट लॉट ऑफ रीडर्स. बहुत पुराने लोग आए उस दिन क्योंकि वो इवेंट था सिर्फ थाने के लिए था, थानेकरों के लिए था. तो कुछ लोग ना ऐसे लेके आए कि ये 1987 की मेरे पास कॉपी है, ये मैं 10th स्टैंडर्ड में था और तभी मेरी फोटो आई थी पेपर में ठाणे वैभव में, ये मैंने आज भी संभाल के रखी है. सो दे हैड लैमिनेटेड दैट कॉपी एंड दे शेयर्ड इट विद अस एंड नाउ ही हैज बिकम CEO ऑफ सम वेरी रेप्यूटेड कंपनी बट स्टिल ही हैज दैट लैमिनेटेड कॉपी विद हिम. सो आई थिंक दैट मैटर्स कि ना आपका नाम पेपर में आना, बिकॉज वो थोड़ा एक ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी और एक थोड़ा सा एक वेट आता है उससे कि अरे दैट पब्लिकेशन हाउस हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ मी. और वो उससे हम मोटिवेट करें लोगों को कि कम बैक टू रीडिंग, कम बैक टू न्यूज़पेपर्स एंड वो हो रहा है. Yeah. In fact, today's readers are tomorrow's leaders. Yeah. So, reading जितना lose होता जा रहा है उतना ही, I mean, speaking skills and communication skills. It actually affects. So, because there is a clear-cut difference. If a person who's well-read, he is in a habit of reading, that person would actually stand out in a room. So there's no doubt about it. Absolutely. Because he'll be more knowledgeable, he'll be able to share his perspectives better way. He would have his own POVs in a more deep understanding, जिसको कहते हैं. So reading anyways and writing are two, I think, basic and essential skills which are actually, I would say, parents, not only parents, children, each and every person should devote actually and should prioritize कि ये मुझे करना ही करना है. So I think this should be the goal for the next coming years. You have seen decades of leaders come and go. What is one trait of a storyteller that makes a leader unforgettable? So I sincerely believe na that the storyteller has to be very simple and बहुत ऐसे ना बड़े बड़े वर्ड्स ना यूज करें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें so that every common man can resonate with him. So that is what even I try to follow कि क्योंकि क्या है ना, जितना आप लोगों से कनेक्ट करो ना उतना आपको उनका पल्स पता चलता है. We actually come to know what they actually want. और उसके लिए आप जितना उनके साथ रहो और जैसा उनके बारे में आप बात करो, जैसे उनके लैंग्वेज में जो उनको समझ में आता है वैसे अगर आप जितना आप बात कर पाओ तो आई थिंक दैट इज द ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल स्टोरी टेलर. दैट इज व्हाट आई फील. मतलब मैं भी ऐसी कंटेंट देखता हूँ कि जो बहुत सिंपल है, सादे शब्द यूज करते हैं पर बहुत बड़ा मीनिंग बता के जाते हैं इन अ वेरी सटल वे. So I sincerely feel that everyone should follow that pattern. I think that works in India at least. In fact, आपके is what you said. I have to quote some example here. So I was just watching a reel Instagram पे एक flash हुआ. I was watching something else but वो flash हुआ. So that person बड़े ही raw, बड़ी अपनी देसी language में उसने बोला that भाई ये बड़ा ट्रेंड चल पड़ा आजकल, जिसकी कोई हॉबी है उठा के बिजनेस बना लिया. I mean if you're good at kitchen, why not open a cloud kitchen? कह रहे पैशन और इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. What he said was right actually, that even if you're doing something which you enjoy, why you have to leverage it? I mean, why can't you just enjoy and spend time and build on that emotion? So he said हर चीज बिजनेस बनती जा रही है. I mean, what he said was right actually, and he said it in a very raw language. He said सबने रील्स बनानी शुरू कर दी, सबने ये करना शुरू कर दिया. आप अपना देखो. I mean, just understand your why, and what you said is simple storytelling. So simplicity कहीं ना कहीं खोती जा रही है. I mean, people are getting more and more attracted towards the noise,
and they are becoming not their best versions, but I think thoda sa duplicate. They're trying to emulate someone else, Yeah. which doesn't work in long run. नहीं So वो कहीं ना कहीं उनकी true personality, we have to be on our own, Yes. like जो भी है. So वो authenticity कहीं ना कहीं मतलब खोती जा रही है. So so what is the story you published that changed the fabric of Thane city? So there are like many of them. See, अगर मुझे मैथ्स बहुत पसंद है तो मैं ना Okay. थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में नंबर्स में बहुत बिलीव करता हूँ. तो मैं ऐसे ही जब लास्ट ईयर व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग आवर 50th एनिवर्सरी तो आई वाज डिस्कसिंग विद माय फादर कि कितने स्टोरीज हमने पब्लिश किए होंगे इन लास्ट 50 years. Like क्योंकि वी कम अप विद द पेपर डेली. Okay. Every day there are around 40 to 50 news of Thane which we print. तो आप और साल में 350 बार तो पेपर निकलता ही है. मतलब एक 10-12 दिन ऐसे होते हैं कि कुछ छुट्टियां होती है और ये सब. सो इट इज इन लैक्स. लाइक मतलब कि करीबन 15-20 लाख न्यूज़ सिर्फ थाने करों के हमने आज तक पब्लिश करे होंगे. दे मे बी क्राइम, दे मे पॉलिटिक्स, दे मे बी एजुकेशन. सो डिफरेंट है, मतलब इतना जॉनर अलग अलग है एंड वेरिड न्यूज़. एंड आई एम श्योर कि हर न्यूज़ का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा. किसी का इम्पैक्ट छोटा है, किसी का इम्पैक्ट बड़ा है, पर इम्पैक्ट तो ज़रूर रहा होगा. क्योंकि क्या होता है कि हमने कैसे ना कि सिटीजन जर्नलिज्म भी शुरू किया था. सो कि वी फील दैट जैसे हमने ये स्कूल में रिपोर्टर्स का ये कॉन्सेप्ट चालू किया तो वी थॉट कि लेट्स मेक द कॉमन पब्लिक ऑल्सो आर रिपोर्टर्स. तो हमने सबको अपील किया, नाउ यू ऑल आर रिपोर्टर्स फ्रॉम टुडे. हाँ, आप सब रिपोर्टर्स हो. इंस्टाग्राम रील्स तो वैसे ही बना रहे हैं सब. हाँ. Everybody is becoming a reporter. So we started this way back, मतलब even before Instagram. कि 15-20 साल, हाँ 15-20 साल पहले तो तभी इतना टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं था. तो फिर हम लोग तभी उनको बोलते थे कि अगर कुछ भी आपको दिखता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जो भी है, यू कैन मेल इट टू अस. फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने कहा आप हमें व्हाट्सएप करो. अभी हमने कहा आप हमें डीएम करो. तो ये ऐसा थोड़ा इवोल्यूशन उसमें आ गया. पर अलग अलग न्यूज़ आते हैं एंड ऑफ कोर्स वी वेरीफाई देम. क्योंकि कैसा है कि इफ वी डायरेक्टली प्रिंट देम विदाउट वेरीफाइंग तो देन डिफेमेशन भी हो सकता है. तो वो भी हम सब क्वालिटी चेक करके हम न्यूज़ प्रिंट करते हैं. पर अलग अलग न्यूज़ है, मतलब जिससे ना मतलब कि लोगों को रिलीफ मिला है. एक कई बार होते हैं कि इतने सिविक इश्यूज होते हैं, मतलब छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, पर उनके बारे में कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता. एंड वी वर द वन हु टुक कॉग्निजेंस ऑफ दैट. और उसका फिर इम्पैक्ट हुआ. मतलब जब मतलब जैसे लाइक मेरे रिलेटिव में एक डॉक्टर है, तो जब कोई पेशेंट ठीक हो के घर चला जाता है फिर 15 दिन के बाद वो वापस आता है पेड़े लेके, मिठाई लेके कि अभी मैं सब ठीक हूँ, मेरा रूटीन चालू हो गया. तो मुझे ना बहुत फैसिनेट करता था ये सब कि अरे क्या अच्छा है ना, मतलब इट इज सच अ नोबल जॉब. हमारे केस में भी ऐसा होता है कि जब किसी का कुछ इश्यू सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, ही कम्स आफ्टर फ्यू डेज विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स. हाँ, कि अरे वहाँ पे ना ये था, गार्डन का इशू था, पर द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैव टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट और अभी वो गार्डन वापस से शुरू हो गया, तो माय ग्रैंड चिल्ड्रन कैन गो प्ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या वहाँ पे मॉस्किटोज का इशू था, वो आपके इसमें आया, अभी वो रिजॉल्व हो गया. या पानी का इशू था, पानी अच्छा नहीं आ रहा था, या पानी नहीं आ रहा था बिल्कुल, या पॉटहोल्स का फोटो हमने आपको भेजा था, आपने वो कवर कर दिया, जिसकी वजह से टीएमसी ने, मतलब ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फट से वो उसके ऊपर एक्शन लेके वो सॉल्व कर दिया. तो वी फील वेरी नाइस, वी फील वेरी हैप्पी कि अरे ना इससे ना एक्चुअली लोगों की मदद हो रही है. पीपल आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंटेंट. और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मतलब जैसे एक लड़की का हमने एक न्यूज़ कवर किया था. तो शी इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ महाराष्ट्र हु स्टेज इन थाने. नाउ हर पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर फंड्स कि उसको किलिमांजारो पीक चढ़ना था. तो उसके लिए बहुत बजट था, हेवी बजट. तो शी वॉज लाइक कि अरे यहाँ ये बजट इतना आएगा कहाँ से. एंड दे अप्रोच्ड अस कि आप इसकी न्यूज़ प्रिंट कर सकते हो क्या. शी हैज़ क्लाइम्ड सो मेनी पीक्स टिल डेट एंड शी वांट्स टू climb that peak. She's hardly 10 years old. But we are trying to collect funds. अभी तक इतने इकट्ठा हुए, पर maybe your news may help us in collecting some funds. You won't believe, हमने वो news print करा, within 7 days they got the entire budget. Very nice. And she climbed, और क्या चाहिए? She climbed Kilimanjaro on 15th of August and she gave me a call. After climbing, she came down, she gave me a call. I climbed. Thank you so much, Dada. Because of your news, I got funds and I could climb.
So that is a sense of satisfaction. I think that is मतलब जो आपका question था कि what news are actually changing the fabric. तो people are feeling that confidence कि अरे कोई तो है कि मेरा कुछ स्टार्टअप है, अगर मैं ठाणों में प्रिंट करूँ तो शायद से मुझे कस्टमर मिलेंगे. मेरी कोई एम्बिशन है, मुझे पूरी करनी है, मे बी ठाणों कैन हेल्प मी. तो ये एक भरोसा शायद से हमने क्रिएट किया है इतने सालों में. Exactly. So the story foundry in Thane Vaibhav आप कब करवा रहे हैं? Anytime. Okay. So this is something very interesting question. So imagine if Thane Vaibhav was a person. So what would be its personality be today compared to 20 years ago? So like my question is, आज जो है अगर थाने वैभव हम एक पर्सन की तरह एम्यूलेट करें तो उसकी आज जो पर्सनालिटी वो क्या होगी जो 20 साल पहले थी उससे. आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस? सो इफ थाने वैभव वाज अ पर्सन. ये एकदम अलग सवाल है, मतलब क्योंकि टू सी ए कंपनी एज अ पर्सन तो नहीं, मुझे लगता है कि लाइक 20 years बैक वो पर्सन उतना पॉपुलर नहीं था. 20 years बाद में अभी वो बहुत पॉपुलर है. एंड ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन सेलिब्रेशंस, wants to like to be a part of everyone's happiness. तो थोड़ा सा altruist काइंड ऑफ अ पर्सन बोल सकते हैं. हु इज अ थोड़ा सा फिलेंथ्रोपिक भी है. मतलब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि किसी का जब न्यूज आता है और उसमें उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. हाँ, एक्सपेक्टेशन इतना ही है कि उससे रीडर पढ़े, रीडर से एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ती है, पर वो इंडिविजुअल न्यूज कवर करने से मुझे ये मिलना चाहिए उससे, ऐसा कोई उसकी भावना नहीं होती. सो मतलब हम लोग इतनी माइक्रो न्यूज कवर करते हैं ना, इतनी माइक्रो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो. मतलब वो that person also feels कि अरे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरा कभी कुछ कवर हो सकता है, but that you only did. So ये हम लोग बहुत frequently करते हैं. क्या आपको कुछ अनलर्न भी करना पड़ा? आई मीन डिड यू डू समथिंग विच यू हैड टू अनलर्न while taking forward this brand, or maybe to put it in another sense, in the world of digitization? So did you have to unlearn some things which could leave the traditional thing and then so नहीं, ये ना this model only was very different. Starting a local paper, अभी कई सारे local papers है. yes, पर पहले लोकल पेपर चालू करना, फिर उसके बाद ये हाइपर लोकल सप्लीमेंट्स करना वगैरह, अभी शायद से लोग कर रहे हैं अलग अलग जगह पे. तो शुरू का दौर बहुत स्ट्रगलिंग था. मतलब माय ग्रैंडफादर व्हेन ही स्टार्टेड इन 75 to 95 unfortunately passed away. But in 20 years he didn't see the success. मतलब उन्होंने एक्चुअली ये शुरू किया, तो उनका जो एक एक्सपेक्टेशन था वो तभी नहीं फुलफिल हो पाया. क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज कंपटीशन ऑफ बिग पेपर्स, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल पेपर्स. तो 95 के बाद देन माय फादर बिकेम वेरी एक्टिव, ही इज स्टिल एक्टिव इन द बिजनेस. तो उन्होंने कुछ चीज़ें अनलर्न करी. उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें अनलर्न करी. तो ये कुछ चीज़ें जो हमें पता चली कि एक तो पीपल लाइक टू रीड वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. तो पहले के ज़माने में ना कैसा ना बहुत बड़े बड़े ऐसे टाइप आर्टिकल्स आते थे. अभी उतना टाइम नहीं है लोगों के पास. पीपल वांटेड इन नटशेल, पीपल वांटेड इन पॉइंट्स, बुलेट्स का ज़माना है, इन शॉर्ट्स का ज़माना है. तो जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है, लेट्स टेक something from it. Like in shorts अच्छा है. Why to like have an enmity with in shorts? वो मेरा competitor है तो क्या हुआ. पर अगर in short जैसा format अगर मैं मेरे ठाणे वैभव में लाता हूँ and उससे ठाणों का सेल बढ़ रहा है, तो I should bring that. तो I unlearned few things कि अरे बड़े बड़े essays ना हो, या फिर ऐसे topics हो who actually matter to the people more. या फिर ऐसा हो रहा है क्या कि are we covering more of political news, more of crime. तो ये थोड़े से ट्रेडिशनल चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता था पहले कि अरे पॉलिटिक्स ओनली सेल्स या क्राइम ओनली सेल्स. तो ऐसा नहीं है. लाइक ऐसा नहीं कि ओनली सेंसेशनलिज्म सेल्स. पीपल लाइक टू रीड पॉजिटिव न्यूज रादर. अभी इतना नेगेटिविटी है बाहर में, तो ऐसा लोगों को लगता है कि भाई सुबह उठ के मुझे कुछ अच्छा पढ़ने मिले. नहीं तो पहले क्या होता था कि सुबह उठ के सब नेगेटिव, यहाँ पर ये हुआ, ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर रॉबरी हुई, यहाँ पर ये हुआ, वो हुआ. ये न्यूज़ ज़रूरी है, ये देनी भी चाहिए. पीपल शुड बी अलर्ट, पीपल शुड बी विजिल जो भी चल रहा है. पर एट द सेम टाइम एक
ऐसी भी एक न्यूज़ होनी चाहिए कि जो पढ़ के थोड़ा सा इंस्पायर हो, Yes. पीपल का थोड़ा एस्पिरेशन उससे जगे. तो Hmm. ये चीज़ें हमने अडेप्ट करी. एंड लाइक एवरी डे वी यूज टू रन अ सीरीज फॉर लास्ट 3 years वी रैन दैट एंड देन वी थोड़ा सा भी होल्ड किया उसको. Hmm. बट हैप्पी मॉर्निंग करके हमने एक सीरीज चालू किया था. अच्छा, okay, nice. एवरी डे वी यूज टू हैव सम पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द फ्रंट पेज. Hmm. बाद में जो बड़ी न्यूज़ है वो नीचे, पर Hmm. पॉजिटिव पहले ऊपर. Hmm. इवन कोविड के टाइम पे हमने क्या किया, Hmm. मेरे फादर ने लाइक Hmm. हु इज द एडिटर ऑफ आवर पेपर, ही टोल्ड आवर एंटायर टीम कि रोज कितने कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, Hmm. ये हम हेडलाइन नहीं करेंगे. Hmm. हम हेडलाइन करेंगे रोज कोविड के कितने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं. Very nice. हाँ, Hmm. उससे भले ही अपना पेपर कम सेल हो, Hmm. पर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ. क्योंकि ना Hmm. पीपल वांटेड दैट कॉन्फिडेंस दैट टाइम, Hmm. पॉजिटिविटी, कि Exactly. अरे ये पेपर पढ़ते इससे पता चल रहा है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं. Hmm. तो थोड़ा सा एक भरोसा, कॉन्फिडेंस आता है. Hmm. तो दीज आर सम थिंग्स लाइक फ्रॉम थोड़ा सेंसेशनलिज्म से Hmm. पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म तक हम इवॉल्व हुए. Hmm. और ये हम और बढ़ा रहे. मतलब वी आर नॉट वरीड कि अरे इससे आई बॉल कम मिलेंगे वगैरह, नहीं मिलते. उल्टा Very nice. उल्टा क्या होता है कि Hmm. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई कवर यू, Hmm. तो आप वो आर्टिकल इतने लोगों को भेजोगे, Hmm. वो एम्पलीफाई होता है रीच. Hmm. दैट रीच गोज एक्सपोनेंशियली हाई. Right. अब आपके बारे में मैं अच्छा ही लिखूंगा, पॉजिटिव कवर करूंगा, तो अभी लोग बोलेंगे यार इससे अच्छा तो कुछ और कहीं नेगेटिव हो रहा है वो आप कवर करते हैं, तो थोड़ा सा लोग डर के मारे भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे. Right. पर अब वो क्या ना, डरा रहे बहुत लोग हैं, Exactly. पॉजिटिव मोटिवेट करने वाले बहुत कम है. Hmm. तो आई बिलीव इन दैट कि हम अच्छा कवर करते रहे, पॉजिटिव कवर करते रहे, कि वो ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स रहे Very nice. एंड वो ही 4 लोगों को वो भेजे. Hmm. आई समटाइम्स फील सो नाइस कि जब हम कभी किसी का इंटरव्यू करते हैं, Hmm. वो घूम फिर के मेरे पास ही आता है. Okay. तो आई फील कि अरे वो वायरल हो रहा है, मतलब कि, और मुझे बोलते लोग अरे ये पढ़, Hmm. क्योंकि मेरा नाम उसमें नहीं रहता कई बार, या मेरी टीम का नाम रहता, तो फिर मैं बोलता हूँ अरे वो हमने ही लिखा है. Hmm. तो फिर तो ये अच्छा लगता है कि Right. So I think जैसे आपने grandfather की बात करी, अपने father की बात करी. So what leadership lessons did you learn from him? One leadership lesson which I actually learned today right now was to cover something which would not make people of a fearful state of mind. So this is a very good approach, I would say. This is constructive journalism. Yeah. So even when I write on LinkedIn, so it is called pattern interrupt. हाँ. So when you interrupt the pattern, you start with that hook and then you share the value added thing, and then you share your POV. So this is how I dissect my post when I write. So बताइए आप कैसे, आपने क्या क्या, और फादर एंड ग्रैंडफादर के जो उनकी कैसे क्या क्या सीखा उनसे ना, मैं दोनों से ना सीखा कि हमेशा वी हैव टू बी विद पीपल. और ना जैसे अपना भी ओपीडी है, वो उन्होंने बोला, अपने पास भी लोग समस्या लेके आएंगे, उसका हल अपने को देना है, इधर वो हल न्यूज फॉर्मेट में हो या इवेंट्स फॉर्मेट में हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. रिक्शा रेफ्यूजल्स, शॉर्ट फेयर के लिए रिक्शा नहीं मिलती, ऐसा कोई तो मेरे पास आया. Okay. अभी इसका मैं क्या करूंगा, इसका ट्रीटमेंट मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेडिसिन में क्या दूंगा. तो मैं एक न्यूज दे दूंगा कि रिक्शा वाले ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर शायद से ट्रैफिक वाले उसका कॉग्निजेंस लेंगे और मे बी रिक्शा वाले थोड़ा सुनेंगे. Right. फिर हमने ऐसा किया कि एक काम करते, हो रिक्शा करके चालू करते. Okay. मराठी में हो नहीं वाला हो, मतलब यस. तो जो रिक्शा वाला हर पैसेंजर को हो बोलेगा, यस, ही विल बी रिवॉर्डेड विद सम ग्रोसरी. Oh wow. So we found a sponsor for it. Okay. Then we used to invite his entire family and we used to felicitate him, और उसका फोटो हम पेपर में प्रिंट करते थे कि he is the rickshaw who proudly says yes to every passenger. Secondly, हमने ऐसा और एक जो मैं उनसे बहुत सीखता रहता हूँ, तो अभी everyone wants to have a city clean. मतलब कहीं पे गार्बेज ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. मतलब गवर्नमेंट कितना सफिशिएंट होगा ये सब चीजों के लिए. देन वी थॉट लेट्स डू अ मास कैंपेन जहां पर हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड वील गिव सम टास्क. और कैसा ना, इंसेंटिव ड्रिवन कुछ होगा ना, तो पीपल फॉलो इट. तो हमने ऐसा कहा कि लेट्स स्टार्ट अ कैंपेन कॉल्ड 1 मिनिट ठाण्यासाठी, 1 मिनिट स्वच्छतेसाठी. 1 minute फॉर ठाणे, 1 minute फॉर क्लीनलीनेस. इफ यू आर अ प्राउड ठाणेकर, पक्का ठाणेकर, यू हैव टू डिवोट 1 minute ऑफ योर डे फॉर क्लीनलीनेस. Okay. सो पहले लोग पूछ रहे थे हमें कि 1 मिनट में क्या होगा. तो फिर हम लोग ने ना 1 मिनट में ऐसे कम से कम 100 आइडियाज दिए उनको जो आप इजीली कर सकते हो, जिससे अपनी सिटी एक्चुअल में क्लीन होगी. Very nice. एंड देन वी आस्क्ड देम टू मेक रील्स आउट ऑफ इट.
Okay. हाँ, तो एक टास्क दिया कि जो सबसे अच्छा रील बनाएगा या सबसे अच्छा इनोवेटिव रील बनाएगा जिससे सिटी एक्चुअल क्लीन हो रही है, तो विल रिवॉर्ड हिम, विल अवार्ड हिम विद समथिंग. तो ये हमने किया. देन सोशल प्रोजेक्ट्स बहुत करते रहते हैं हम लोग. मतलब इवन लाइक अभी कभी कोई हॉस्पिटल वाले आते हैं, हमें बोलते हैं कि अरे ना हमें कुछ करना है कि टू इंक्रीज द आयरन अमॉन्ग वुमेन वी नीड टू डू समथिंग, वी हैव टू ड्राइव सम कैंपेन. तो क्या कर सकते हैं? तो एक तो है कि प्लेन आप ऐड बना दो, वो पोस्ट आप सोशल मीडिया पे डाल दो, प्रिंट मीडिया पे डाल दो, बस. तो हमने सोचा कि लेट्स गो फर्दर. और क्या कर सकते? तो देन व्हाट वी डिड वाज लाइक ड्यूरिंग दिवाली वी गिव ड्राई फ्रूट्स टू ईच अदर. तो हमने क्या किया कि हमारा दिवाली का इशू, मतलब दिवाली में बहुत सारे एड्स होते हैं, दिवाली इज द ओनली टाइम व्हेन वी अर्न, पर दिवाली के दिन हमारा फ्रंट पेज हमने खाली रखा और उसमें 2 खजूर चिपकाया हमने, 2 डेट्स. एंड वी टोल्ड देम टर्न टू पेज 2, और पेज 2 पे एक इमोशनल लेटर हमने एक बनाया, लॉन्चिंग आयरन वुमेन कैंपेन ऑफ थाने. एंड दैट लेटर वाज एड्रेस्ड टू ईच एंड एवरी मेल ऑफ थाने कि दीज 2 डेट्स, ये 2 खजूर हमारी तरफ से आपके घर के औरत के लिए, मतलब वो भले आपकी बीवी हो, आपकी मदर हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, ये 2 खजूर आप उनको याद से देना सो दैट शी कैन इंक्रीज हर आयरन कंटेंट, बिकॉज एवरी सेकंड वुमन इज आयरन डेफिशिएंट. तो उनको आयरन एफिशिएंट करने के लिए ये 2 खजूर हमारी तरफ से. आयरन इज देयर. तो ये वो डॉक्टर ने ऐसे बताया कि अरे सिंपल है, खजूर खाना चाहिए, ये वो सब, तो इससे फर्क पड़ेगा. तो वी थॉट लेट्स कॉन्सेप्चुअलाइज इट इन दैट वे. तो इट वाज अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग. और हमने क्या किया, पहले तो वी डिड अ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ खजूर टू ऑल हॉस्पिटल्स, टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते वगैरह. वी ऑल्सो गॉट स्पॉन्सर्स टू इट. सी कोई अच्छा कॉज हो ना, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं. हमें ना स्पॉन्सर्स का एंग्जाइटी नहीं रहता कि यार ये हम कर रहे हैं, इसका बजट इतना है तो लोग आएंगे क्या. पीपल वॉन्ट टू गिव, पीपल वॉन्ट टू डू समथिंग नाइस फॉर द सोसाइटी. उनको सिर्फ ना अच्छे ओकेजन्स नहीं मिलते या अच्छे क्या बोलते हैं opportunities नहीं मिलते. So that is how it is. So I learned these things from them कि let's always keep on doing lot of good things for the people, जिससे brand भी automatically elevate होगा. और वो हम करते गए. मतलब no, but this is very good thing. I mean मैंने भी देखा कई बार वो शैम्पू के sachets या कॉफी के small sachets to promote the brand, but this is something way beyond. I mean, you are actually solving some genre's deficiency issue, and you are actually giving them as a gift to eat it, and it relates with emotions. This absolutely. is something beyond. I mean, this is not at all a selling thing, and this is actually addressing their problem, which they are actually ignoring. So, और जो brands उसमें involve हुए ना, they got emotionally connect with all the like the target audience. तो ऐसा होता है कि it's a win-win situation. आप subtle way में आपके brand के बारे में लोगों को बता रहे हो. Yes, absolutely. So, my next question to you is, many legacy brands have disappeared. So, when the internet arrived, and what was that specific story Thane Vaibhav told itself to stay relevant? नहीं, जैसे मैंने कहा ना प्रीवियसली कि कनेक्टिंग डॉट्स हैज बीन आवर कोर फिलोसॉफी. कि भले कितना भी इंटरनेट आए, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, फिर भी ना जो लोकल हाइपर लोकल स्टोरीज है, इंस्पायरिंग स्टोरीज है, वो बताने वाले प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है. तो वील स्टिक टू दैट फिलोसॉफी एंड वी हैव स्टिल कंटिन्यूड विद दैट. और वो हम कर ही रहे. एंड वो सर्कल हमारा बढ़ ही रहा है. बिकॉज करंटली वी आर मैनेजिंग अराउंड 26 न्यूज़लेटर्स. 26 and they are all monthly, they are all physical as well as digital. तो उसमें इतने डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं. एवरी डे वी आर कनेक्टिंग विद सम ऑफ द अदर न्यू पीपल, न्यू पर्सन, और उनके सर्कल में हम एंटर हो रहे हैं. आई थिंक आई एम द ओनली जर्नलिस्ट मे बी इन थाने हु इज अ पार्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स. मतलब रिटेलर के ग्रुप में भी हूँ, डॉक्टर्स के ग्रुप में भी हूँ. मतलब दो आई एम नॉट अ रिटेलर, दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट ये प्रोसेस बहुत चल ही रहा है. इट्स अ पेरिनियल प्रोसेस एंड इट इज गोइंग ऑन एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग इट. एवरी डे वी आर गेटिंग टू मीट सच न्यू पीपल, और उनसे नए नए आइडियाज आते हैं, और हर एक से बहुत सीखने मिलता है. मतलब आई हैव डन लाइक प्रिंट वाले मेरे कम से कम 300 इंटरव्यूज हो चुके हैं आज तक. 300 या अक्रॉस महाराष्ट्र.
लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के किए, FMCG से लेके ज्वेलर्स से लेके रियल एस्टेट है या इवन लोकल मिठाई वाले हो या साड़ी शॉप्स हो, ओनर्स हो, हर एक से जो सीखने मिला, मतलब आई फील रियली फॉर्चुनेट दैट हैज एनरिच्ड मी एज अ पर्सन एंड ऑल्सो इट हैज एनरिच्ड माई ब्रांड. क्योंकि क्या होता है कि वो जो कर रहे हैं वो मैं मेरे इसमें कर सकता हूँ क्या, रेप्लिकेट. तो वो करने का कायम मेरा ये रहा है, प्रयास रहा है. तो आई फील ना एवरीवन शुड कीप मीटिंग न्यू पीपल एवरी डे. मतलब भले आप अभी आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम इन मीडिया, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत ऑर्गेनिकली मिल जाती है, नेचुरली मिल जाती है. पर दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ मीडिया, दे शुड कीप मीटिंग न्यू पीपल, बिकॉज ना नए लोग मिलके ही आपको आइडियाज आते हैं नए नए. आप बुक्स पढ़ते रहो, वर्चुअल वीडियोस भी देखते रहो, दैट इज ऑल्सो ओके, बट एक्चुअल लोगों को मिलकर वो एक अलग आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है. Yes. So you get more ideas. You get to know from their own journey. So I think that is perfectly it resonates with me as well what you said. So now coming to the rapid fire round. So of the Story Foundry. So are you ready? Yeah. Okay. So while brainstorming, what would you like to have? Misal pav or vada pav? वड़ा पाव. ओके. मिसल खाते खाते बहुत टाइम जाता है. अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, वड़ा पाव कैसा फट से आप खा के निकल जाते हो ना. और lot of things, dal and you have to mix lot of things. And at time it is spicy also, no? Okay. No, but I really like misal pav. I mean, if I have to give an option, I'll definitely choose misal pav. And one word that describes the spirit of Thane. Energy, enthusiasm. Thane has like vibrancy, like Thane is very vibrant. Okay. And it is city full of I would say aspirations. Yeah. It inspires each another. That's what I feel. So if Thane was a book, what would be the title be? City of Inspirations. City of Inspirations. Excellent. They like इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, मतलब जैसे when I started this Know Your Town ना, तो Know Your Town is about knowing the people in your town. Yes. तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ every town has a Ambani, Adani, Tata, and we can get inspired from them. Yes. And क्या होता है, हम बड़े बड़े आइकन्स देखते हैं, पर हमारे यहाँ जो इतने आइकन्स होते हैं उनके स्टोरीज तो पहले पढ़ो, समझो, जानो. Exactly. तो I think Thane is one such. Thane produced a chief minister. So Thane का कैपेबिलिटी देखो, मतलब the potential of Thane. Yes. वही कई बारी हम अपने नेबर्स को, जैसे आपने कहा, नेबर्स को जानते नहीं हैं बाहर की. आई मीन वी ट्राई बिल्डिंग रिलेशनशिप. सो वो अपनी लोकल बिजनेसेस एंड जो लोकल इंस्पिरेशन है, आई थिंक वी शुड गेट वैल्यू फ्रॉम दैट. द मोस्ट अंडररेटेड लैंडमार्क इन द सिटी दैट यू थिंक पीपल शुड विजिट? नहीं, देयर आर मेनी एक्चुअली. पर वो दिन मैं ऐसे ही भटक गया था एक्चुअली. आई वाज फाइंडिंग सम सोसाइटी एंड कहीं रॉन्ग जगह चला गया. एंड तभी मुझे लगा यार, आई एम स्टेइंग इन थाने फॉर सो मेनी ईयर्स, फिर भी मैंने ये जगह नहीं देखी थी. प्लेस नियर वाघबेड़, नियर घोड़बंदर रोड. एंड एज वी नो दैट थाने इज सराउंडेड बाय क्रीक्स एंड हिल्स. तो जो क्रीक का जो साइड है ना, द वाटर फ्रंट, इट इज अमेजिंग, नियर वाघबेड़. तो जो मैं बर्ड्स देख रहा था और जो एक मतलब इट इज़ वेरी सेरीन, वेरी ट्रैंक्विल. एंड अभी मैं वापस जाऊँगा. वो वहाँ से मैं गलती से गया वो दिन, अब वापस जाऊँगा एक दिन. Nice. And what has been your favorite interview of all times? You have appeared for so many interviews. I mean, what has been your favorite? Like वहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगा, or maybe that was your favorite when somebody interviewed you. I interviewed someone, na? No, the other way around. Okay. मेरे इंटरव्यूज तो बहुत वैसे कम हुए हैं. आई हैव ऑलवेज बीन लाइक द वन हु हैज इंटरव्यूड. ये मेरा 3rd 4th ही होगा शायद से इंटरव्यू. सो मे बी देन द अदर वे यू कैन मेंशन कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो आपके लिए आपका फेवरेट कौन सा रहा? तो मैंने निरंजन हिरानंदानी सर का इंटरव्यू लिया था. अच्छा. तो दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यूज. लाइक व्हाट आई लर्नड इन दैट इंटरव्यू, एंड अगेन सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ नेचर, एंड बिजनेस को आप किस एंगल से देखते हो, कैसे देखते हो, एक ब्रांड कैसे क्रिएट करते हो. तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज ये मैंने इंटरव्यू कम से कम 8-9 साल पहले लिया. तो दैट टाइम वॉज वे यंगर. इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था मेरे पास, बट फिर भी ही वॉज वेरी नाइस टू गिव मी द टाइम. तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज. नाइस.
I mean, if you have to choose ink on paper or pixels on screen, what would you choose? Ink on paper. A 1,000-word editorial article or a 60-second reel? नहीं, अभी तो 60 सेकेंड रील, बिकॉज 1000 वर्ड एडिटोरियल तो अभी मैं भी नहीं लिखता हूँ या मेरे डैडी भी नहीं लिखते. इवन ही लाइक वी ऑल्सो आर लाइक 300-400 वर्ड्स इज सफाइस, सो दैट इज इनफ. क्योंकि अभी और क्या है ना, दिस इज मोर चैलेंजिंग टू एक्सप्रेस समथिंग इन शॉर्टर वर्ड्स. एग्जैक्टली. बहुत ज्यादा चैलेंज, मतलब कमिंग अप विद अ 30 seconds ad and a 2 hours film, so 30 second ad, like we are into also a lot of ad making also. Okay. Like we are now also into, like we have diversified, like हमारी ad agency भी है. Okay. So that came very organic. मतलब people used to come with ads कि आप हमें ये ad आपके पेपर में पब्लिश करना है. Then they used to ask me, do you know any vendor who looks after the ads at bus stops या malls या रेडियो में डालना है या सिनेमा में डालना है, या कोई है क्या जो ad बना के देगा हमें वगैरह. तो then we realize कि यार यहाँ पे potential है. And we being into business of words, तो हमें कहा कि यार हम ये प्रोडक्शन कर सकते हैं. And that is how even the ad agency started, which is also doing extremely well. Okay. So we are doing lot of campaigns for many clients. We do their outdoor, indoor ads, etc. etc. तो ये काफी चल रहा है. Very तो good. पर ad का एक है कि we do it in a very different and a very subtle way. Like? जैसे कि ना बहुत एग्रेसिवली नहीं जाते हम. अच्छा. हाँ, तो वी टेल देम कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ही बहुत बड़ा रखना है या उसको प्रोजेक्ट करना है, हैमर करना है. समटाइम्स मेक द कॉज बिगर, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो यू. तो ये हम उनको बताते. तो अर्लियर इनिशियली थोड़ा सा वो ये था कि अरे इससे लोगों को पता चलेगा ना एट द एंड ऑफ द एड कि ये इसके बारे में था. तो पहले थोड़ा सा ये था, पीपल वेर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट, बट अभी पीपल हैव रियलाइज कि अरे नहीं, दिस इज अ वेरी सटल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पीपल रिमेंबर दैट एड फॉर एवर. Yes. I still remember Dairy Milk का वो chocolate वाला, you know, it connects with that emotions. That there's a girl who cricket ground में she dances. I mean, I still resonate because so what I feel, जो आपने बोला कि जो emotions है and the other thing in a very subtle way, that is what is required actually for audience. Nobody wants product feature benefits. नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, वो जो मैंने रिक्शा का एग्जांपल आपको बताया ना, तो रिक्शा के एग्जांपल में जो हम ग्रोसरी दे रहे थे ना, तो दैट वाज गिवन बाय अ सुपरमार्केट. ओके. तो वो सुपरमार्केट का इनडायरेक्टली ब्रांडिंग हुआ. यस. सुपरमार्केट का गुडविल बढ़ा, क्योंकि क्या हुआ कि उनके कस्टमर को पता चला कि अरे ये मेरा जो प्रॉब्लम है ये एड्रेस कर रहा है, ये उसका काम नहीं है पर फिर भी वो एड्रेस कर रहा है. यस. या खजूर जिसने दिया उस दिन, उसका ब्रांडिंग हुआ. पीपल गॉट इमोशनली कनेक्टेड विद दैट ब्रांड. तो वी एडवाइज पीपल टू डू सच काइंड ऑफ मार्केटिंग. अभी जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में पहले पीपल यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रियल एस्टेट एड्स इन प्रिंट, थिएटर, आउटडोर. आज भी हो रहा है पर वो थोड़ा सा प्रपोर्शन कम हुआ है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. हाँ, तो मैंने एक दिन ऐसे एक डेवलपर के साथ में बैठा था, तो मैंने उनको पूछा कि फिर आपको बिजनेस आ कहाँ से रहा है, तो लेट्स फोकस मोर ऑन दैट. So then he told me that the channel partners, the brokers, they're getting me a lot of good business. Yes. तो मैंने कहा then let's focus on them. तो उनके लिए क्या कर सकते? तो then we thought let's start a newsletter only for channel partners. Okay. तो डेवलपर के इंटरव्यू बहुत जगह आते हैं. Yes. पर आई थिंक शायद से इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो चैनल पार्टनर के इंटरव्यू कोई कवर कर रहा है. तो आपने लिया उनका इंटरव्यू? तो हमने वो न्यूज़लेटर ही चालू कर दिया फॉर अ डेवलपर. हम लोग ने वो एक डेवलपर है ऋतु ग्रुप करके, तो उनको हमने कन्विंस किया कि लेट्स स्टार्ट अ एक्सक्लूसिव न्यूज़लेटर ओनली फॉर चैनल पार्टनर्स. तो नाउ दीज चैनल पार्टनर्स फील सो नाइस कि मेरा इंटरव्यू आ रहा है और ही इज द फर्स्ट वन हु इज टेकिंग माय इंटरव्यू. तो इनडायरेक्टली क्या होता है, उनका और उनका रैपो बढ़ जाता है. तो क्या होता है, वो सेल भी इन्फ्लुएंस होता है. तो ये हम ऐसे आइडियाज उनको देते रहते हैं कि जिससे ना क्या हो कि इमोशनली पीपल स्टे कनेक्टेड विथ यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ऐसा नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म कर लिया लोग भूल गए, ऐसा नहीं है ना. अभी क्या होता है, हम चैनल पार्टनर को कवर कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी कवर कर रहे हैं. मतलब जैसे एक्सटेंशन पार्ट ऐसा है कि उनके बिजनेस को तो कवर कर ही रहे हम, पर उनके जो बच्चे हैं हु हैव स्कोर्ड वेल इन 10th 12th, वी इवन एक्नॉलेज देम. तो वो क्या हो रहा है, हम उनके घर तक पेनिट्रेट हो रहा है वैसे, एंड दे आल्सो रिमेन विद अस फॉरएवर. एंड दिस हैपेंस व्हेन टू स्टोरी टेलर्स कनेक्ट. ये हमारा रैपिड फायर राउंड था और हमने एक क्वेश्चन में अरे बाप रे भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी. No, that's okay. So that is where authentic storytelling comes to the picture.
And the last question is, what is the first thing you do when you wake up in the morning? Do you check the newspaper or do you check the Twitter, LinkedIn? What do you do? नहीं, न्यूज़पेपर्स। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर का हूँ इसीलिए, That's what. पर मैं ना उतना टेक्नोलॉजी ना बहुत लिमिटेड यूज़ करता हूँ। Okay. मतलब ये अच्छा है बुरा है पता नहीं, पर मुझे ना क्या होता है कि अगर बहुत टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें कंटिन्यूसली इफ वी आर ऑन द टेक, Yes. तो ना हम मेडिटेट ही नहीं कर पाते, कुछ नए आइडियाज आइडिएट ही नहीं हो पाते, मतलब बिकॉज कॉन्स्टेंटली देन वी आर डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि क्या होता है कि देन वो फोकस हिल जाता है। तो देन मेरा एक थोड़ा सा ऐसा है कि मैं सुबह 9 तक फ़ोन ही नहीं देखता हूँ और रात को 9 के बाद फ़ोन नहीं देखता हूँ। तो थोड़ा सा क्या है ना, वो डिटैचमेंट ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो देन यू आर ऑलवेज इन फोन एंड यू आर ऑलवेज सीइंग कि क्या किधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी बीइंग इन न्यूज़ स्टिल ये प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि देन वी हैव टू बी अपडेटेड, क्योंकि अगर रात को 10 बजे भी कोई न्यूज़ आई है तो देन यू हैव टू गेट इट प्रिंटेड। देन आई हैव डिप्लॉयड पीपल हु कैन सी दोज न्यूज़ व्हिच आर हैपनिंग एट 10 o'clock, बट एटलीस्ट आई डोंट हैव टू कीप चेकिंग माई फोन फॉर दैट। सो आई प्रेफर reading more books, reading more papers, meeting more people. Yes. Actually, not on Zoom, not on Google Meet. I prefer कि अरे मैं आता हूँ, भले दूर हो, I'll come and I'll meet you. तो उससे क्या है थोड़ा सा एक और रियल पिक्चर मिल जाता है। Yes, absolutely. And it was pleasure meeting you. Same here. Although थोड़ा सा time लगा, we were in touch for the last 3-4 months, but that's okay. I mean, all's well that ends well. And it was actually a pleasure knowing your journey, your legacy built by your grandfather and your father, and the kind of thought process they've carried, and you have taken that forward. You have built a brand, you're carrying it, you are a guardian. So I think this was one of my favorite podcasts also. Thank you so Because much. I mean, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, I would say. I mean, I didn't know कि ये टाइम कैसे बीता. So thank you so much, Nikhil. नहीं, जैसे मैंने कहा, अपना ये शुरू होने से पहले ही पॉडकास्ट शुरू हो गया था। Yes. We were discussing so many things. Exactly. And there are plenty of things which can be discussed. Yes, yes. So thank you so much for being a part of the Story Foundry. So अगर end में आप Story Foundry, I mean, if you can say something in Marathi, I mean, because I really like listening to Marathi, because मुझे languages का, I mean, I really like listening to different languages. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ थँक यू ही, आय मीन यू लाईक टू से, आणि ठाणे वैभव के बारे में? नाही, मला खूप बरं वाटलं तुम्ही मला जिथे बोलवलं, कारण आत्ताच आमचं सुवर्ण महोत्सव वर्ष पूर्ण झालं आणि त्यानिमित्ताने हा पहिला पॉडकास्ट आहे जे मी देतोय. आणि ॲक्च्युली काय होतं की जेव्हा तुम्ही मला सांगितलं की असं करायचं आहे पॉडकास्ट, सो मी पण थोडं विचार करायला लागलो की अरे खरंच आपली जर्नी कशी होती, काय होती. कारण आम्ही अशा बिझनेसमध्ये की वी ओनली एक्सप्लोर अदर्स जर्नी. ओके. सो आम्हाला आमची जर्नी एक्सप्लोर करायला हार्डली कधी वेळ मिळतो, पण यू गिव्ह मी दॅट अपॉर्च्युनिटी. सो थँक्यू स्टोरी फाउंड्री फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू रेट्रोस्पेक्ट टुडे. सो मैं भी बैठा 2 दिन शांति से जस्ट टू हैव अ रिकैप कि हम लोग ने क्या किया है इतने सालों में. मतलब वी केम अप विथ द कॉफी टेबल बुक अँड ऑल एव्हरीथिंग. पण मला असं वाटलं की कुठेतरी अशा पॉडकास्टने आपण परत विचार करायला लागतो, अरे मी ते पण केलं होतं, मी हे पण केलं होतं, अच्छा मी हे केलं होतं. आता ह्या डिस्कशन मधनं मला अजून काहीतरी सुचतंय की आपल्याला अजून काय करता येईल. Exactly. सो थँक्यू वन्स अगेन फॉर इन्व्हायटिंग मी. Thank you so much, viewers, for watching this special episode. We learned a lot today. In fact, this was one of my favorite podcasts. Nikhil has actually given a lot of insights on authentic storytelling, hyper-local newspaper, Marathi, language, and how building niche and micro stories, how they have been doing it, and how he's carrying forward the legacy. So, viewers, what is holding you to tell your own story? So start telling your stories and build your narrative. And do reach out to us if you are looking forward to build your narrative as a narrative mode. Thank you so much.